Good morning, students. Today we are going to continue the periodic classification of element. Today we are going to discuss about the variation in groups and period. As all of you know, there are 18 groups in our periodic table and 7 periods. ठीक है? First we are going to discuss all the properties only in group, and after that all these properties we will discuss in period. First of all, I am going to discuss about the atomic radius or ionic radius. Suppose it is an atom, it is nucleus, and this is first shell. Suppose karo I have lithium, so this is first shell, this is second shell. It means lithium have only 2 shell. Then what is the atomic radius? The distance from the center of the nucleus to the outermost shell is known as atomic radius. यानी कि it is a distance between the center of the nucleus to the outermost shell. अब suppose करो lithium has 3 cells, तो हम 3 shell, third shell ले लेंगे. We will take third shell. Now this is the radius of the sodium in this way. Generally it is expressed in picometer, क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है तो we will express this in picometer. Okay students, ionic radius have 2 types. So ions are of 2 types, cation and anion. Suppose I am taking example of sodium configuration 2, 8 and 1. It has 3 shells. Okay, now sodium 1 positive, it will lose 1 electron and gain positive charge, then its configuration becomes 2, 8. It means it have 2 shells. यानी कि cations are smaller than its parent atom. In the case of cation, after losing the electrons or gain the electron, we will consider the distance from the center of the nucleus to the outermost shell after losing or gaining the electron. इलेक्ट्रॉन देने या लेने के बाद हम देखेंगे उसके सेंटर, न्यूक्लियस के सेंटर से बाहर वाली शेल के बीच का डिस्टेंस. अब क्योंकि सोडियम में 3 शेल है एंड सोडियम 1 पॉजिटिव है, ओनली 2 शेल्स, तो वी विल टेक द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल, दैट इज सेकंड शेल तक का ही हम डिस्टेंस लेने वाले हैं. ओके, सपोज अनदर केस आई एम टेकिंग chlorine and chlorine 1 negative. Okay, see this chlorine configuration is 2, 8 and 7. It has 2, 8 and 8. कि अब यहाँ पे it has both these have 3 shells. क्या यहाँ पर जो साइज है वो सेम रहने वाला है? नहीं, यहाँ साइज सेम नहीं रहेगा. साइज विल डिक्रीज. क्यों डिक्रीज हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये क्वेरी आपकी बार बार आएगी फिर, इसलिए मैं पहले ध्यान से आपको बोल रही हूँ कि इस कंसेप्ट को ध्यान से देखिएगा. यहाँ तो बहुत क्लियर हो गया साफ साफ कि एक शेल कम हो गया, साइज कम हो गया, छोटा हो गया सॉरी, लेकिन यहाँ पे साइज बढ़ जाएगा. शेल तो यहाँ पे भी 3 थी, यहाँ पे भी 3 है, तो साइज इस केस में बढ़ जाएगा. कैटायन के केस में छोटा होगा, एनायन के केस में बड़ा होगा. क्यों बड़ा होगा? ध्यान से सुनिएगा प्लीज. लेट्स सी, it has 17 protons, it also has 17 protons. Protons never be changed, only the electrons will change. Okay, it has 17 protons and 17 electrons. It has 17 protons and 18 electrons. Means electrons बढ़ गए हैं, जिसके कारण बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? क्योंकि ये भी नेगेटिव
नेक्स्ट है आपका, अब देखते हैं, सपोज करो रेडियस की बात करते हैं, हम डाउन द ग्रुप बात करते हैं। दिस इज लिथियम, इट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन इन 2s1, सोडियम इट हैज लास्ट इलेक्ट्रॉन इन 3s1, पोटेशियम 4s1, रुबीडियम 5s1 एंड सीजियम 6s1। फंक्शन को छोड़ देते हैं, हर ग्रुप के लास्ट नंबर को हम छोड़ देंगे क्योंकि वो जनरली रेडियो एक्टिव होते हैं, इसलिए हम उनको जनरली डिस्कस नहीं करते हैं। चलिए यहाँ तक की बात करते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s1, 3s1, 4s1, 5s1 और 6s1। हमें सिर्फ लास्ट शेल से मतलब होता है, जैसे आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन हमें सिर्फ लास्ट शेल से मतलब है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है। अब यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें 2 शेल है, इट हैज 3 शेल, इट हैज 4 शेल, इट हैज 5 शेल एंड इट हैज 6 शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स आर कॉन्टिन्यूअसली या ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। 2 शेल का साइज छोटा होगा, 3 शेल का साइज बड़ा हो जाएगा, 4 शेल है मोर साइज, 5 शेल है अनदर इंक्रीज इन द साइज। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती है, साइज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज, whether it is ionic or whether it is atomic. Okay, this is suppose I am taking the example of potassium. Potassium 2, 8, 8 and 1, and potassium 1 positive will be 2, 8, 8. It means it has 4 shells, it has 3 shells. ठीक है, अगर इन दोनों में कंपैरिजन करो किसका साइज बड़ा है, it has 2 shells and it has 3 shells. मीन्स आप शेल देख के पता लगा सकते हैं किसका साइज छोटा है, किसका साइज बड़ा है, किसके केस में, अगर हम ग्रुप में बात कर रहे हैं तो। ठीक है, ग्रुप में साइज हम क्या देख के पता लगाएंगे, शेल देख लीजिए, कॉन्फ़िगरेशन देखिए, साफ साफ देख के पता चल जाएगा किसका साइज बड़ा है और किसका साइज छोटा है। इतनी बात क्लियर हो गई। मीन्स कंक्लूजन क्या निकल के आया, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज विल ऑलवेज इंक्रीज। ओके, next topic we are going to discuss here beta, that is ionization enthalpy. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ionization enthalpy क्या होती है। Let's see, this is the example of sodium, sodium 2, 8 and 1. This is the configuration of sodium. It means this last electron enters in 3s1 shell. Okay. Ionization enthalpy यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, वो कम से कम एनर्जी जो मुझे इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए चाहिए। देखिएगा, आपका सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन्स होते हैं। फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, and next first shell have only 1 electrons. I have to pull it, मुझे ये इलेक्ट्रॉन निकालना, I have to remove this 1 electron. ठीक है, this electron is bounded with the protons because proton and electrons have attraction, means there is an attraction between these two. Okay, इस अट्रैक्शन के कारण इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं होगा। इसको निकालने के लिए मुझे क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। तो वो जो एनर्जी मैं यहाँ दूंगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए, वो क्या हो जाती है, आयनाइजेशन enthalpy, minimum amount of energy required to remove the electron from। लेकिन इलेक्ट्रॉन कब निकलता है, जब आपका जो एलिमेंट है वो एटॉमिक फॉर्म में हो, एटम के फॉर्म में हो, एक अकेला हो। नेक्स्ट वो गैसियस फॉर्म में हो, गैसियस को आइसोलेटेड हो, आइसोलेटेड मतलब अकेला अकेला एग्जिस्ट करता हो। तो उस जब वो एलिमेंट आपका एटॉमिक फॉर्म में होगा यानी कि आइसोलेट होगा और गैसियस स्टेट में होगा, तभी आप यहाँ पर एनर्जी देकर इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा सकते हैं। नाउ लिसन द डेफिनेशन केयरफुली, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलोजूल पर मोल, मींस एक मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, वो क्या होगी उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी we have to discuss in group and period. First of all I am going to discuss in group here only. Let's see this example beta. This is lithium have 2 shells, sodium have 3 shells, it has 4, 5 and 6 shells. Now
आर इंक्रीजिंग, इट मीन्स ऑब्वियसली साइज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अगर साइज बढ़ रहा है तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या होता जा रहा है, कम कम होता चला जा रहा है। तो अब आप सोचिए कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है या इसमें से? यस, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ गया है, साइज बढ़ने के कारण प्रोटॉन का अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे कम हो गया। लेकिन इस केस में और भी साइज बढ़ गया है, मीन्स यहाँ अट्रैक्शन और भी कम है इस इलेक्ट्रॉन पर, तो इसको निकालने में और भी कम एनर्जी लगेगी, यहाँ और कम लगेगी, यहाँ और कम। नाउ वी कैन कंक्लूड कि डाउन द ग्रुप साइज विल इंक्रीज, साइज बढ़ गया है, सो अट्रैक्शन ऑन द लास्ट इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। दैट्स व्हाई द आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप विल डिक्रीज, इसलिए कम एनर्जी लगेगी। सी यहाँ से भी देख लेते हैं एक बार डाटा से हम कि लिथियम नीड्स 522 जूल पर मोल, सोडियम नीड्स 496, डिक्रीज हो गई, डाटा भी यही कह रहा है। पोटेशियम 419, यहाँ पे अगेन डिक्रीज हो गई, 403 डिक्रीज, 374 डाटा से भी रिप्रेजेंट हुआ है, डिक्रीज हुई है। और थ्योरेटिकली भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम हो गया तो उसे निकालना आसान हो गया है इलेक्ट्रॉन को, उसे कम एनर्जी में ही निकाला जा सकता है। इन दिस वे यू हैव डिस्कस्ड द आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप ऑन द बिहाफ ऑफ एटॉमिक साइज। यानी कि एक फैक्टर है एटॉमिक साइज, जिससे हम क्या कहेंगे कि डाउन द ग्रुप साइज को आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। नेक्स्ट एक और फैक्टर होता है जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का हम देखते हैं, वो देखते हैं किसके केस में, स्टेबिलिटी, यानी कि जिसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी उसको ज्यादा एनर्जी लगने वाली है। जैसे नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, उनकी शेल फुलफिल होती है, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड। सही है, हाफ फिल या फुल फिल। जैसे सपोज करो नाइट्रोजन और फास्फोरस का केस देखते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का केस देखते हैं। नाइट्रोजन सॉरी कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसमें आता है 2p2, दिस इज 2p3 एंड दिस इज 2p4। सही है। वैसे तो ये एक पीरियड में होते, तीनों एक ही पीरियड में है, तो पीरियड में साइज घटता है तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो ऑक्सीजन को ज्यादा एनर्जी लगनी चाहिए और नाइट्रोजन को कम। ये बात फिर भी आएगी दोबारा से भी, लेकिन फिर यहाँ पे भी ध्यान से सुन लो। ऑक्सीजन को एनर्जी ज्यादा लगनी चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है। क्यों छोटा है, जब हम पीरियड में जाएंगे तब डिस्कस करेंगे, अभी हम ये वाली बात यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, नाइट्रोजन का साइज बड़ा होता है। अब नाइट्रोजन का साइज बड़ा होता है तो अट्रैक्शन कम होगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर, उसको एनर्जी कम लगनी चाहिए, बट उसको एनर्जी ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है, डी का ऑर्बिटल कुछ ऐसा, टी का ऑर्बिटल कुछ ऐसा होता है। ये हो गया 2p3 और ये हो गया आपका 2p4। दिस इज हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि डीपी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसके पास 3 है। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड आर मोर स्टेबल देन अदर्स, इट मीन्स ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसको, इस इलेक्ट्रॉन्स को, अब इस केस में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगती है बजाय इसके। ओके, नेक्स्ट केस इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। सपोज कीजिए इसके केस में जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसमें सिर्फ S और आएगा, इसके केस में Pb आया, इसके केस में Db आएगा, सॉरी इसमें भी D नहीं आएगा, इसमें P तक आएगा, लेकिन इसके केस में D आएगा। जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इससे पहले यहाँ D आएगा, 3D एग्जिस्ट करेगा। यानी कि जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2 3d 10 एंड फिर 5s1 लिख देंगे। इस तरीके से हम इसमें 3d 10 आएगा। मीन्स अगर D आता है तो D के बाद क्या आएगा, 3d 10, फिर आएगा आपका 4p6 एंड देन आएगा 5s2। इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन निकाल के आने वाली है, देख लीजिएगा चेक करके। 4s1 सॉरी 5s1, ठीक है। अब S से पहले कौन आया, P, और P से पहले कौन आया, D। जब इस तरह की कंडीशंस आती हैं तो जो अब ये D आ जाएगा यहाँ पर,
देखा, जैसे सपोज करो मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे फ्रंट वाला बच्चा बहुत अच्छे से दिखाई देगा, क्या लास्ट वाला बच्चा उतने अच्छे से दिखाई देगा? नहीं। क्यों नहीं दिखाई देगा? उनके बीच में कौन आ गया? दूसरी शेल्स आ गई, मतलब रोज आ गई, जिनके कारण मैं लास्ट वाले बच्चे को उतना नहीं देख पाऊंगी। इट मीन्स मेरा जो अट्रैक्शन है लास्ट वाले बच्चे को उतना नहीं जा पाएगा। ठीक है, अगर वहां पे डी और एफ आता है तो अट्रैक्शन ज्यादा जाता है। मीन्स डी और एफ आने के कारण वो लोग ज्यादा स्क्रीनिंग नहीं कर पाते, ज्यादा नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण न्यूक्लियस अपना इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन तक भेज पाता है। लेकिन अगर खाली एस और पी आते हैं तो वो स्क्रीनिंग ज्यादा करते हैं, इसका मतलब वो शील्डिंग कर लेते हैं, ढक लेते हैं न्यूक्लियस को, और न्यूक्लियस अपना अट्रैक्शन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स को नहीं भेज पाता। मीन्स ये जो बीच में शेल्स एग्जिस्ट करती हैं वो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से शील्ड प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है कि वो अट्रैक्शन ना भेज पाए। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन में अगर डी और एफ एग्जिस्ट कर रहा है तो अट्रैक्शन ज्यादा जाएगा, और डी और एफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो अट्रैक्शन कम जाएगा, और अट्रैक्शन कम जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो गया है। ठीक है, लेकिन डी और एफ अगर एग्जिस्ट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन में, डी हो या एफ हो, कोई भी हो, ठीक है, अगर एफ है तो ज्यादा अट्रैक्शन जाएगा, अट्रैक्शन ज्यादा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। मीन्स दीज आर द थ्री फैक्टर्स on the basis of we can find out the क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी की डिक्रीज है या इंक्रीज है। जनरली क्वेश्चन जो आता है दो एलिमेंट्स दे देते हैं कि इनमें से किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, तो कहीं ये वाला कंसेप्ट लगेगा, कहीं ये लगेगा और कहीं ये लगेगा। आप तीनों चेक करके देख लेंगे, पहले देखेंगे कहीं इसमें डी और एफ तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कहीं इसमें हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है, फिर सिंपल बात आती है साइंस। ठीक है, तो इन तीन सारे क्राइटेरिया से मिलकर हमारा एक टॉपिक खत्म होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द एटॉमिक और आयनिक साइज के बारे में पढ़ा, डाउनर ग्रुप क्या होता है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। आप लोग थोड़ा सा उसके बारे में पहले से पढ़ के रहेंगे, जिससे कि आप जब लेक्चर सुनेंगे तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू।